Hello everyone, I am Jayashree Sahu, Assistant Professor Microbiology. Today I am going to discuss topic anaerobic catabolism of glucose. First is introduction. Catabolism मतलब होता है लिविंग सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम फूड मॉलिक्यूल जो हम इनटेक कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होना और साथ में एनर्जी रिलीज होना. This is also called as the respiration. Respiration is the process in which macromolecule food stuff which we have taken break down in the living cell with the help of enzyme and it generate energy. This is called as the respiration. और respiration जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration occur in the presence of oxygen and anaerobic respiration occur in the absence of oxygen. Next is anaerobic respiration. Anaerobic respiration जैसे अभी मैंने कहा anaerobic respiration occur when oxygen is absent. तो anaerobic respiration जो होता है उसमें फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है. ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है. ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस से एंड इट इज ओनली एनर्जी यील्डिंग पाथवे इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. आफ्टर दैट ग्लाइकोलाइसिस coupled with the fermentation for the production of ATP. In this structure, it is shown that glucose is first converted to pyruvate by the glycolytic pathway. In the absence of oxygen, it doesn't enter to the mitochondria and doesn't enter in Krebs cycle or oxidative phosphorylation. When oxygen is absent, pyruvate through anaerobic pathway, it gives another products that are acid or alcohol in the fermentation reaction. Anaerobic catabolism of glucose. Catabolism means breakdown or splitting of macromolecule into smaller molecule. तो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनारोबिकली, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, breakdown of glucose to yield energy. This is called anaerobic catabolism of glucose. फर्स्ट जो एनारोबिक कैटाबॉलिज्म जो होगा ग्लूकोज का वो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होगा जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा. आफ्टर दैट पायरुवेट जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू एसिड या अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा. देन व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज द process in which in the absence of oxygen glucose or carbohydrate is converted by some microorganism and some cells into acid or alcohol. फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट है वह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल्स के द्वारा एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. जो एसिड फर्मेंटेशन जो है वो जनरली जो है बैक्टीरियास के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है. और जो अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट के थ्रू और सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है उनके थ्रू ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है. यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस in which 2 ATP molecule are involved or used and 4 ATP molecule are released. Net production of ATP is 2 in glycolytic pathway. After formation of pyruvate or pyruvic acid in fermentation, yeast fermentation, alcohol and CO2 is formed, and in lactic acid fermentation, lactic acid is formed. This is the process of anaerobic catabolism of glucose. Type of fermentation. On the basis of end product formed in the fermentation are of following types. First is the alcoholic
fermentation, second is lactic acid fermentation, third is mixed acid fermentation, next is butanediol fermentation, next is butanol fermentation, and propionic acid fermentation. First is alcoholic fermentation. In the alcoholic fermentation, glucose is converted to alcohol and CO2 in the end of the reaction. This step occurs in alcoholic fermentation occur in 3 steps. First is the formation of pyruvic acid from glucose, that is glycolysis. After formation of pyruvate, there is 2 steps. First step is the decarboxylation of the pyruvate and formation of acetaldehyde and CO2. And next step is the regeneration of NAD plus by formation of alcohol through acetaldehyde. This reaction, pyruvate formed from glycolysis with the help of enzyme pyruvate decarboxylase. Here decarboxylation occurs, one CO2 molecule is released and TTP is used as a cofactor or coenzyme here. In the presence of TTP, magnesium ion, pyruvate decarboxylase convert pyruvate to acetaldehyde. This is the first step, and in second step, acetaldehyde is reduced and form ethanol with the help of NADH, which is converted to NAD plus, means NAD plus is regenerated, and this is again used in glycolytic cycle, glycolytic pathway. Net equation for the alcoholic fermentation. First, 1 molecule of glucose use 2 ADP, 2 inorganic phosphate, and it convert to 2 ethanol, 2 CO2 and 2 ATP. Some example of microorganism which perform alcoholic fermentation is Saccharomyces cerevisiae. This is yeast, and second one is the Pseudomonas, that is bacteria. Application of alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is important in food and industrial microbiology and is used to produce beer, wine, distilled spirits, etc. It is also used in the production of fermented food products. Next is lactic acid fermentation. In the lactic acid fermentation, end product of the fermentation is lactic acid. Lactic acid production is occurred by some bacterial species. This is also a 2-step fermentation. In the first step, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, फिर पायरुवेट से डायरेक्ट लैक्टेट या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू टू पायरुवेट जो बना है. फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेप में रिजनरेशन ऑफ NAD प्लस, इसमें जो पायरुवेट है उससे लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे NAD प्लस का फिर से रिजनरेट होगा और वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फिर से जाके वो NADH का फॉर्मेशन करेगा. इस तरह से NADH NAD प्लस का साइक्लिंग होता रहेगा. तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड होता है. ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा. फिर पायरुवेट जो है उसका ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टेट में फॉर्मेशन होगा. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 2 टाइप का होता है, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन. होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का वो सिर्फ लैक्टिक एसिड होता है, इसके अलावा कोई एसिड या अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होता. तो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन क्या है? होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन आर द टाइप ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन in which end product is only lactic acid. फर्स्ट जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसे ही होगा.
ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट जो है वो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। होमोलैक्टिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड पेडियोकोकस एंड एंट्रोकोकस। इसका एप्लीकेशन homolactic fermentation is important in dairy industries for storing of milk to produce various fermented product। जो मिल्क है, दूध से जो दही बनने का जो प्रोसेस है वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के कारण होता है। फिर आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट में बी यूज फॉर मेकिंग चीज एक्सेट्रा। And next is lactobacillus species in the digestive tract of the human help in the digestion of lactose present in the milk. And next is the lactobacillus species are used as the probiotic. Next, heterolactic fermentation। जैसे homolactic fermentation में सिर्फ lactic acid का फॉर्मेशन हुआ था एज अ एंड प्रोडक्ट, लेकिन हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन में का जो प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट जो होगा वो लैक्टिक एसिड तो होगा, उसके साथ साथ इथेनॉल और CO2 का भी फॉर्मेशन होगा। इस स्टेप में जो ग्लूकोज है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू पायरुवेट, एसिटिक एसिड और CO2 में फर्स्ट कन्वर्ट होगा। फिर जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और एसिटिक एसिड जो है वो इथेनॉल में रिड्यूस हो जाएगा और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। हेटेरोलैक्टिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल है ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरॉइड्स, लैक्टोबैसिलस, बिफरमेंटस एंड लैक्टोनोस्टॉक लैक्टिस। यहाँ पे होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक दोनों का यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे है पाथवे। ग्लूकोज जो है होमोलैक्टिक में सबसे फर्स्ट ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट जो है वो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के हेल्प से। और जो हेटेरोलैक्टिक पाथवे है उसमें ग्लूकोज जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा और एसिटिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, एसिटिल फॉस्फेट से एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हेटेरोलैक्टिक हो गया और होमोलैक्टिक में सिर्फ लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन में जो फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है वो मिक्सचर ऑफ एसिड्स रहेंगे, जैसे कि जिसमें लैक्टिक एसिड भी रहेगा, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा, इन सब का प्रोडक्शन होगा। पायरुवेट जो है वो फर्स्ट एंजाइम पायरुवेट फॉर्मेट लाइस के थ्रू वो क्लीव होगा, ब्रेकडाउन होगा उसका, और फॉर्मिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। जो फॉर्मिक एसिड जो है वो जो बनेगा उससे फिर बहुत से एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। जो फॉर्मिक एसिड है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह होगा इस पाथवे में। एंड ये जो मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन जो है एंट्रोबैक्टीरियसी फैमिली जो बैक्टीरिया के हैं वो शो करते हैं, जैसे कि इकोलाई, सल्मोनेला, क्लैप्सिला, एंड दिस फर्मेंटेटिव पाथवे इज द बेसिस ऑफ मेथिल रेट टेस्ट। ये है मिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन पाथवे फर्मेंटेशन का। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट, पायरुवेट मीन्स ये ग्लूकोज से पायरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस से बना, फिर उसके बाद जो है पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए और फॉर्मेट में ब्रेक डाउन हुआ, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए है सबसे पहले एसिटिल फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद एसीटेट में यह कन्वर्ट होगा, एसीटेट या एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। इसमें जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वह पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। यहाँ से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम
ए से यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एसिटिल कोएंजाइम है वो एसिटेट में ब्रेक डाउन होगा, फिर उसके बाद जो उसका हाफ पोर्शन जो है ये एसिटेट में ब्रेक डाउन हुआ, फिर हाफ जो इसका पोर्शन है उससे एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और एसिटल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा NADH की हेल्प से, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट। Some enterobacteria convert glucose into the format which may accumulate, यहाँ पे accumulate हो सकता है, या फिर अगर एसिडिक एनवायरमेंट हो तो वह CO2 और H2 में ब्रेक डाउन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉर्मिंग हाइड्रोजन लाइज। फिर उसके बाद है सक्सिनेट। यहाँ पे जो पायरुवेट जो बना है, पायरुवेट से यह जो रिवर्स TCA साइकिल को फॉलो करते हुए यह ऑक्सलोएसिटेट, मैलेट, फ्यूमरेट और सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एंड नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट। पायरुवेट जो है वह यहाँ पे लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, और NADH जो है NAD+ में कन्वर्ट होगा। मतलब मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन में एसिटेट या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फिर इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और लैक्टेट या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो मिक्स एसिड प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो मिक्स्ड एसिड रहेंगे। नेक्स्ट इज 2,3-बुटेनडाइल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का जब एंड प्रोडक्ट 2,3-बुटेनडाइल होगा तो इस फर्मेंटेशन को 2,3-बुटेनडाइल फर्मेंटेशन कहेंगे। जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज से जब पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, तो जो पायरुवेट जो है, कुछ पायरुवेट जो है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो पायरुवेट जो है वो एसिटोलैक्टेट में पहले कंडेंस्ड होगा, और एसिटोलैक्टेट जो है वह डिकार्बोक्सिलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेस, फिर एसिटोइन का फॉर्मेशन होगा, और जो एसिटोइन जो है वह NADH2 से की हेल्प से वह रिड्यूस्ड होकर 2,3-बुटेनडाइल में कन्वर्ट होगा। और यह पाथवे जो है एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के क्लैप्सिला के द्वारा यह शो होता है, एंड दिस फर्मेंटेटिव पाथवे इज द बेसिस ऑफ VP टेस्ट। दिस इज पायरुवेट। पायरुवेट जो है एक इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस्ड होके यहाँ पे एसिटोलैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर एसिटोइन का फॉर्मेशन होगा, फिर जब एसिटोइन जो है वो NADH के यहाँ पे जो NADH जो है वो NAD+ में कन्वर्ट होगा, और यह 2,3-बुटेनडाइल में रिड्यूस होकर यह 2,3-बुटेनडाइल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, जो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो ब्यूटेनॉल होता है या ब्यूटेरेट होता है, तब उसे हम ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन कहेंगे। और इसमें साथ साथ कुछ अदर जो एंड प्रोडक्ट हैं वो भी प्राप्त होते हैं, जैसे एसीटोन, CO2, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये भी इस पाथवे में फॉर्म होते हैं, और यह क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज के में ये फर्मेंटेशन शो होता है। फर्स्ट यहाँ पे ग्लूकोज से यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, फिर 2-एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो कंडेंस्ड होकर वो एसिटोएसिटिल कोएंजाइम A में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटिल ट्रांसफरेज। यह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद जो एसिटोएसिटिल कोएंजाइम है वह
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल कोएंजाइम ए में यह रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड NADH2 विल ऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस। फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल कोएंजाइम ए है वह इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेस के प्रेजेंस में ये क्रोटोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। जो एसिटोएसिटिल कोएंजाइम है और ब्यूटेरिल कोएंजाइम ए लिखा है, इनके बीच में एक और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, वह है क्रोटोनिल कोएंजाइम ए। फिर क्रोटोनिल कोएंजाइम ए है वो फर्दर रिड्यूस होगा और वह ब्यूटेरिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ब्यूटेरिल कोएंजाइम ए एसीटेट के साथ एक्ट करके एंजाइम फैटी एसिड कोएंजाइम में ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम में और ब्यूटरेट में कन्वर्ट होगा। ब्यूटरेट में और एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो फिर से यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ब्यूटरेट का फॉर्मेशन होगा। फिर ब्यूटरिल कोएंजाइम ए से ब्यूटरल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा और ब्यूटरल्डिहाइड से ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ब्यूटरेट और ब्यूटेनॉल का इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन। In this type of fermentation, end product of the fermentation is propionic acid and CO2. This type of fermentation is occurred by propionic acid bacteria. These bacteria ferment glucose or lactate to propionic acid under the anaerobic condition. यहाँ पे है पायरुवेट जो है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज जो है पायरुवेट में, पायरुवेट जो है ऑक्सिलो एसीटेट, मैलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए कोएंजाइम के साथ कंबाइन करके मैथिल मैनोइल कोएंजाइम में, फिर यह प्रोपियोनिल कोएंजाइम में, फिर यह प्रोपियोनेट में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। These are the references. Thank you.